Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. So, question number 2 basically has, 9 parts, right? 9 parts, as you can see. And we all know that one would be discussed, of course, later on at the end, because that has entirely different concept, point of inflection and first derivative test and all. I have discussed this part. I have discussed, which one? Okay, this part. Okay, now I'll be discussing just this one part because it has a complicated solution, and I will just be guiding you people. Rest of the parts are going to be done by you people yourselves. Okay, still, if there is any ambiguity, any problem, you are most welcome to ask, right? So let us go to sixth part. Okay, so I will be letting you people know that how to find the first and second derivatives, because that is what is difficult in this question. Rest of the things are simple, but the values would be a bit complicated. So I'm gonna let you know about this. Wait. Okay, now firstly, I'll be finding my first derivative, as we all know. No, before that I'll be calling this as y is equal to f of x. Okay, now I have to find my first derivative. How do we find that? यहाँ पे भी power rule लगेगा. Power rule ये वैसे ही simple है. How would we do this? 3 2s are 6, x raised to the power 3 minus 2, sorry 3 minus 1, which is 2, minus 2 into 2, power नीचे आके multiply हो गई, x raised to the power 2 minus 1 into further derivative which is 1, मैं नहीं लिख रही, minus 36 into derivative of x is 1 plus 0, sorry, plus 0. Okay, now what is the derivative finally? 6x square minus 4x minus 36. This is my first derivative. Clear? Acha, we all know that after finding the first derivative, what do? For critical point हम लिखते हैं for c dot p, यानी for critical point या for stationary point, we will be taking it equals to 0 to find value of x. तो जाहिर है अब इतनी बड़ी सी टर्म है, but we have to put it equals to 0. Okay, 6x square minus 4x minus 36 equals to 0. What is common in all them? 2 is common, ले लिया और 0 कर दिया. So it would be 3x square minus 2x minus 18 equals to 0. अब इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18. ओके, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. कॉम्प्लिकेशन ये है कि देयर इज़ नो मिड टर्म ब्रेक इन दिस. मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा. सो व्हाट डू वी हैव टू डू? ऑफ कोर्स वी हैव टू अप्लाई quadratic formula, right? So my x would be, quadratic formula apply करेंगे. This is my a, we all are familiar with that. This is a, what is it? b, what is it? c. और फॉर्मूला क्या था हमारा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. पुट द वैल्यूज इन योर क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो इट वुड बी माइनस इंटू माइनस 2 plus minus radical of b square, which is minus 2 square minus 4ac divided by, this is 18, 2 into 3. Okay, now we can see that 2 is common from the numerator. 2 common. कैसे? मेरा थोड़ा डायरेक्ट करने को दिल कर रहा है, बट आई डोंट नो इफ़ पीपल वुड गेट इट और नॉट. ओके, 2 स्क्वायर मीन्स 4, सो इट वुड बी 4 माइनस, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, वाई नॉट, वो आई विल बी लेटिंग यू नो. ओके, दिस इज़ माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 into 3. ओके, नाउ लुक एट द रेडिकल साइन. रेडिकल साइन में यू कैन सी दिस इज़ 4, दिस इज़ 4. कैन वी टेक इट आउट एज कॉमन? अगर हम इसको कॉमन लें, दिस इज़ माइनस साइन बाय द वे ब्रैकेट में, माइनस 18. ओके, अगर हम इस 4 को कॉमन लेंगे तो रेडिकल से बाहर आके इट वुड बिकम 2, राइट? एंड दिस 2 एंड दिस 1 2 जो बाहर आएगा, क्या बनेगा? मैं यहीं पर लिखने लगी हूँ थोड़ी सी जगह बनाने के बाद, बिकॉज इफ़ आई बी इरेजिंग इट यू विल नॉट गेट इट दैट वे. ओके, लुक एट दिस. what if I took 2 as common? So it would become 1 plus minus radical of, यहाँ पे क्या रह गया? 1, this minus and this minus sign and this minus sign would become plus. ये 4 तो बाहर जाके एक 2 निकल के कॉमन हो गया. सो वेट, थोड़ा सा सही कर लो इसको. 1 प्लस, ओके, नाउ this 18 and this 3, these two are left. So 18 3s are क्या होता है? It is 54, right? Divided by 2 into 3 as it is. Okay, now what? Can you see? This 2 and this 2 cancelled out.
और ये 54 प्लस 1 व्हाट इज़ इट 55. सो व्हाट इज़ माई एफ डैश ऑफ एक्स के बाद जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं 1 प्लस माइनस रेडिकल ऑफ 55 डिवाइडेड बाई 3. ओके नाउ ये x आ गया, कितना अजीब व गरीब सा है. सो इट मीन्स आई गॉट टू वैल्यूज़ ऑफ x. वन इज़ 1 प्लस रेडिकल ऑफ 55 डिवाइडेड बाई 3 एंड द अदर इज़ x इज इक्वल टू 1 माइनस रेडिकल ऑफ 55 डिवाइडेड बाई 3. 1 माइनस रेडिकल ऑफ 55 डिवाइडेड बाई 3. इन दोनों को, इसको भी और इसको भी बेशक आप डेसिमल में करके लिख लें, दैट इज़ नॉट अ बिग डील. नाउ दीज टू, फॉर दीज टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स यू हैव टू चेक. हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, सो वी हैव टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव. नाउ सेकेंड डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, जाहिर है फर्स्ट डेरिवेटिव का. व्हाट वाज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव, ज़रा क्विकली मैं इधर लिख लेती हूँ. इट वाज 6x स्क्वायर. ओके सॉरी, माई फर्स्ट डेरिवेटिव वॉज 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36. ओके अब इसमें इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसी का. सो दैट वुड बी 6 2 ज़ा 12 x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज़ 1 माइनस 4. नाउ दिस इज़ योर सेकेंड डेरिवेटिव. इसमें आप अपनी दोनों वैल्यूज़ बारी बारी पुट करेंगे. वन वैल्यू वॉज दिस डिवाइडेड बाई 3 and the other value was this 1 minus radical of 55 divided by 3. बारी बारी इसमें पुट करें, चेक करें, like you can convert it into decimals and then you can put it in value, like you can replace x with this value over here. दोनों को बारी बारी चेक करें. if it is greater than 0 f double dash of x, अगर greater than 0 आएगा तो relative minima, less than 0 आएगा तो relative maxima. after getting to know that दिस x वैल्यू विल बी सब्सटीट्यूटेड हियर इन प्लेस ऑफ x, इसीलिए मैं कह रही हूँ डेसिमल में करके करिएगा. तो जो y का आंसर आएगा दैट वुड बी पॉइंट्स. ठीक है, आई एम गोना शो यू द सोल्यूशन. ये इतनी डिटेल में यहाँ पे किया भी नहीं जा सकता एंड यू पीपल शुड बी डूइंग इट योरसेल्व्स. सी यहाँ तक मैंने कर लिया. कहाँ तक, ये वैल्यूज़ निकल आई, ये टू वैल्यूज़ x is this और x is this. ठीक है जी. now when x is equal to this thing they have found it for you people. f double dash of x में put की value, so the answer is you can see positive. if answer is positive it would have relative minima, but इतना enough नहीं है. relative minima तो होगा but वो value भी find करनी है. now for minimum value it has relative minima at this. now for minimum value what do you have to do, you have to put this value of x where in this given function, यहाँ पे. ठीक है, शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया, ये देखें पुट की x की जगह पे सिंप्लीफिकेशन की. इसलिए इतनी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है. पुट इट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स, पुट द वैल्यू और कैलकुलेटर से ही सिंप्लीफाई करके यू विल बी गेटिंग दिस आंसर. नाउ यू कैन सी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y. सो ये आपका पॉइंट आ गया. x जो आपका था 1 प्लस रेडिकल ऑफ 55 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका y की वैल्यू आ गई. बिल्कुल इसी तरह आप दूसरी वैल्यू के लिए भी फाइंड करेंगे. सो यू पीपल कैन डू इट योरसेल्व्स. ओके, विल बी मीटिंग यू. ओके, now we are switching to question number 3 because question number 3 4 5 they have the same concept, second derivative test wala. So that's why we will be finding this, we will be doing this. Then in the last video we will be talking about point of inflection and first derivative test, right? Look at this question number 3. question की statement क्या है? find the maximum and minimum values of the function. ठीक है जी. defined by the following equation occurring in the interval 0 to 2 pi. f of x is equal to this is our function और हमें कहा गया है find the maximum and minimum values of the function. यानी ये जो डिफाइन किया हुआ है f of x is equal to sin of x plus cos of x, ये फंक्शन है. और इस इंटरवल के अंदर अब now this is related to class first year चैप्टर नंबर 14. उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा रेफरेंस एंगल का. ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल बिकॉज द इंटरवल इज़ गिवन टू अस विच इज़ 0 to 2 pi. तो हमने वो सारे पॉइंट्स निकाले हैं जैसे हम रेफरेंस एंगल में करते थे चैप्टर नंबर 14 में. ओके, लुक एट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी फाइंडिंग योर फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज़ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव. साइन का डेरिवेटिव इज़ कॉज ऑफ एक्स प्लस कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. So now what is my f dash of x?
it is, this question is very 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 important for long. Cos of x minus sine of x. Okay, now I got my first derivative. Is this enough? No. I have to find, I'll be saying, okay, for critical points, putting f dash of x equals to 0. So now what is my f dash of x? It is cos of x minus sine of x, and I'll be taking it equals to 0. अब ज़ीरो की इक्वल लेने का मकसद क्या होता है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? सो कैन आई राइट इट एज, यहाँ से आपने थोड़ा सा स्टेप्स याद रखने हैं. कॉज ऑफ एक्स, यहाँ से चैप्टर नंबर 14 का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया. कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, मतलब हमने ऑल पॉसिबल एंगल्स फाइंड करने हैं इन दिस इंटरवल. ठीक है, बस ये याद रखिएगा. नाउ आई एम टेकिंग दिस कॉज ऑफ एक्स टू द अदर साइड. इट वुड बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, सो इट वुड बिकम साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स. व्हाट इज साइन डिवाइडेड बाय कॉज? tan. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके, नाउ tan of x is equal to 1. Any confusion so far? I don't think so. Now I want value of x. If I want value of x, it means I want all the solutions of x. क्या करते थे हम यहाँ पे? हम कहते थे tan इनवर्स ऑफ जो भी यहाँ पे वैल्यू थी 1, और इसको हम क्या नाम देते थे? रिमेंबर, रेफरेंस एंगल. अब रेफरेंस एंगल का मतलब है tan इनवर्स ऑफ 1. tan इनवर्स ऑफ 1 वी ऑल नो इज़ 45 डिग्री विच इज़ पाई बाय 4. ये मेरा आ गया रेफरेंस एंगल, बिकॉज मुझे सारे के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं 0 से 2 पाई, यानी पूरे होल कंप्लीट रोटेशन में 0 to 2 पाई कंप्लीट रोटेशन में. ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी द ओनली आंसर. अब रेफरेंस एंगल अप्लाई करके हम करते थे ना. ओके, नाउ लुक एट दिस, रिकॉल करवाती हूँ. इफ़ दिस एंगल, दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है, tan की वैल्यू इज़ पॉजिटिव. इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, tan कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता था? tan, वी ऑल नो दैट tan इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. रिमेंबर, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. अब अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल हमारा क्या होता था? ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. फर्स्ट में थीटा थीटा ही होता था, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा. नाउ वी ऑल कैन सी विच वन वी नीड, दिस वन एंड दिस वन. अब थीटा, फर्स्ट में थीटा का मतलब है पाई बाय 4 वुड बी द वन आंसर. सो एक आंसर तो मेरा x इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएगा. ठीक हो गया, बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है पॉजिटिव tan, ये फर्स्ट में, सो इट वुड बी पाई बाय 4. दिस इज़ माई वन आंसर. ठीक है जी. व्हाट अबाउट माई सेकेंड आंसर? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? पाई प्लस थीटा. सो माई सेकेंड आंसर वुड बी x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा. व्हाट इज़ माई थीटा? पाई बाय 4. टेक द एलसीएम. कुछ याद आ रहा होगा फर्स्ट ईयर का. टेक द एलसीएम. नाउ इट वुड बी 4 पाई प्लस पाई क्या बन गया? 5 पाई बाय 4. दिस इज़ माई सेकेंड आंसर ऑफ x. सो आई गॉट 2 वैल्यूज़ ऑफ x. क्या क्या वैल्यूज़ आई मेरे पास x की? x इज़ इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इज़ इक्वल टू 5 पाई बाय 4. नाउ बस यही था थोड़ा सा डिफरेंट. बाकी क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में ये और ये जो दो आंसर्स आएंगे, इन दोनों आंसर्स को आप उसी तरह से पहले f डबल डैश ऑफ x फाइंड करेंगे. उसका आंसर जो भी आएगा उसमें बारी बारी हम इसको और इसको पुट करेंगे और चेक करेंगे किस पे वो रिलेटिव मैक्सिमा है, किस पे वो मिनिमा है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या हैं. सिंपल, बाकी बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है. नाउ फर्स्टली आई विल बी फाइंडिंग माई सेकेंड डेरिवेटिव. अच्छा, मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेती हूँ, cos x माइनस साइन x. अब इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है नेक्स्ट. सो इट वुड बी, cos का डेरिवेटिव वुड बी माइनस साइन ऑफ x, और इस माइनस साइन का होगा माइनस cos. सो दिस इज़ माई डेरिवेटिव. नाउ आई एम गोना पुट फर्स्टली x इज इक्वल टू पाई बाय 4. सो इट वुड बी x इक्वल्स टू पाई बाय 4 एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4. मेरे पास इसलिए जगह कम है, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इट दैट वे. पाई बाय 4 माइनस कॉस एज इट इज़, पाई एक्स की जगह पे पाई बाय 4. पाई बाय 4 इज़ 45. वी ऑल नो दैट 45 डिग्री, एट 45 डिग्री कॉज एंड साइन हैव द सेम आंसर्स, राइट? सो इट वुड बी, यहाँ पे करने लगी हूँ, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 इज़ माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 2. इसी तरह से माइनस कॉज ऑफ पाई बाय 4 इज़ माइनस 1 ओवर रेडिकल ऑफ 2. सो इट वुड बिकम माइनस 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 2. अब जो भी आंसर आ रहा है एफ डबल डैश ऑफ एक्स का, हमें उससे कंसर्न नहीं है. हमारा कंसर्न क्या है? दैट द आंसर इज़ नेगेटिव. इफ़ द आंसर इज़ नेगेटिव, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा. किस पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे. सो व्हाट विल वी से? क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें. Okay, now what will I say? I will say at
x is equal to pi by 4, f of x has relative मैक्सिमा, ये पूरा लिख लीजिएगा मैक्सिमा। अब तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़, कैसे फाइंड करेंगे, x इज़ इक्वल टू क्या है मेरे पास, पाई बाय 4, और वो मैं कहाँ पे पुट करूँगी, यहाँ पे। सो आई विल बी सेइंग y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, यानी f ऑफ पाई बाय 4, एंड दैट वुड बी, x की जगह हम पाई बाय 4 पुट करेंगे, सो इट वुड बी साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस कॉज ऑफ पाई बाय 4, दोनों की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 2, सो इट वुड बी 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 2। सिंप्लीफिकेशन कर लें, द आंसर वुड बी रेडिकल ऑफ 2। सो एक मेरा आंसर क्या आ गया, x बाय पाई डिवाइडेड बाय 4 के साथ ये हमारा पॉइंट आ गया, एक पॉइंट मेरा ये आ गया, ठीक है। द सेकेंड वन वॉज x इज़ इक्वल टू 5 पाई बाय 4। अब मुझे इसके लिए भी देखना है, तो मैं अगेन f डबल डैश ऑफ x में इस वैल्यू को पुट करेंगे, हम चेक करेंगे क्या आंसर हमारा ग्रेटर आता है या लेस आता है, उस हिसाब से हम बिल्कुल वही प्रोसेस होगा, ठीक है। आई कैन नॉट टेक दैट मच क्योंकि वीडियो फिर से बहुत लंबी हो गई है, अभी मेरे 2 और क्वेश्चंस भी हैं। ओके, लुक एट दिस, बहुत अच्छे तरीके से इसमें भी सोल्यूशन गिवन है सेम। ये मैं इसलिए क्लोजअप दे रही हूँ आप लोगों को ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, बाद में इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू पीपल। ये देखिए यहाँ पे बल्कि इन्होंने रेफरेंस एंगल नहीं लिखा, आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेफरेंस एंगल ताकि भूल